Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of business mathematics, now we are going to talk about ordinary annuities. Annuities is a series of payment required to be made or received over time at regular intervals. The most common payment interval are yearly, semi-annually, quarterly and monthly. Some example of annuities: car payment, rent, pension, fund payment and insurance premiums. Type of annuities: ordinary and due. Ordinary annuities. An ordinary annuities has the following characteristic: the payment are always made at the end of each period. The interest rate compound at the same interval as the payment interval. For calculating the sum of a series of regular payment, if you know how much you can invest per period for a certain time period, the future value of an ordinary annuities formula is useful for finding out how much you would have in the future by investing at your given interest rate. If you are making payment on a loan, the future value is useful in determining the total cost of the loan. Is future value for ordinary annuities is R into 1 plus I raised to the power n minus 1 by I. And if you would like to determine today value of a future payment series, you need to use the formula that calculate the present value of an ordinary annuities. This is the formula you would use as part of a bond pricing calculation. The present value of an ordinary annuity: calculate the present value of the coupon payment that you will receive in the future. Formula is: present value for ordinary annuities is R into 1 minus 1 plus I raised to the power minus n by I, where R is cash flow per period, I is the interest rate and n is the number of payment. ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं. मसलन Alan decide to set aside $50 at the end of each month for his child college education. If the child were to be born today, how much will be available for its college education when she turned 19 years old? Assume an interest rate of 5% compounded annually. तो सबसे पहले देखें इसमें कैश फ्लो पर पीरियड जो है वो कितना है, $50. इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 5%, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है, हमने इसको एनुअली लिखना होता है. तो क्या लिखेंगे, 5% बाई 12 यानी 0.05 बाई 12 और ये मिलेगा हमें 0.004166. और नंबर ऑफ़ पेमेंट कितनी बनेगी, क्योंकि जब उसने 19 ईयर ओल्ड हो जाना है, अगर वो आज पैदा होता है तो ये 18 साल के लिए हम उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटल करेंगे. वो कितनी बनती हैं, एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 18 ज़रा 12 ये बनेगी 216. तो फ्यूचर वैल्यू हमें फाइंड करनी है. फ्यूचर वैल्यू के लिए हम दो फार्मूलाज लिख चुके हैं. उनके लिए जो पहला फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज इनटू फार्मूलाज. ये फार्मूला हमने लिख लिया, फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एनुइटीज़, R इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई आई. R आपके पास $50 है, 1 प्लस आई जो है वो 0.004166 है. इसके बाद n आपके पास 216 है. इन दोनों का सम हम फाइंड करेंगे. सम फाइंड करने के बाद उस सम की पावर लेंगे 216. जो भी हमें अमाउंट मिलेगी उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे
फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को आप इस रिज़ल्ट पे डिवाइड करेंगे, अगेन जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को ऐड किया, ये मिली हम वैल्यू। अब इसकी ये पावर ली, पावर लेने के बाद इसमें से 1 को माइनस किया तो हमें ये वैल्यू मिली, इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो ये मिली, इसको जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो $17,458.67 हमें अमाउंट मिल जाएगी, जो कि आफ्टर 19 ईयर्स जो है ये फ्यूचर वैल्यू बनेगी जो एलन ने डिसाइड किया हुआ है अपने बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए। एक क्वेश्चन है जी, मिस्टर ए डिपॉजिट $700 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब देखिए, हमने पहले जिक्र किया कि ऑर्डिनरी एन्युटीज़ जो है वो होती है जिसमें हर पेमेंट आपने मंथ के एंड पे करना होती है। तो यहाँ क्योंकि देखें एंड ऑफ ईच मंथ आ गया तो इसका मतलब क्या कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन्युटीज़ फाइंड करनी है, लेकिन वो कौन सी करनी है, ऑर्डिनरी। ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर 2010 in an investment account of 9% annual interest rate. Calculate the future value of the annuities on December 31, 2011. एक साल के बाद कंपाउंडिंग इज़ डन ऑन मंथली बेसिस। तो कैश फ्लो देखें, आपके पास $700 है, इंटरेस्ट रेट है 9%, तो 9% को हम लिखें तो 0.09 बनता है। अब चूँकि कंपाउंडिंग मंथली है तो 0.09/12 करेंगे तो 0.0075 बनेगा, और नंबर ऑफ़ पेमेंट हमें कितनी मिलेंगी, एक साल के लिए हमें 12 मिलेंगी, तो n हमने 12 लिख लिया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला हमने करना होता है। अब फर्स्ट वाला हमने लोन के लिए करना होता है, इस वजह से इस पे फर्स्ट वाले हम यूज़ करेंगे r इंटू 1 + i⁻n-1/i। r आपके पास 700 है, i आपने लिख लिया 0.0075 इन दोनों का सम, उसकी पावर 12 - 1, ये आपको अमाउंट मिली। इसको जब 0.0075 पे डिवाइड किया तो 12.50, 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8,755.31। ये क्वेश्चन और देखें जिसको हम दूसरे फार्मूला से सॉल्व करेंगे। एलन आस्क यू टू हेल्प हिम डिटरमिन द अप्रोप्रिएट प्राइस टू पे फॉर एन एन्युटीज ऑफरिंग आर रिटायरमेंट income $1,000 a month for 10 years. Assume the interest rate is 6% compounded monthly. अब इस पे सेकंड वाला फार्मूला जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने क्या करना होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटीज कैलकुलेट करते हैं present value of the coupon payment that you will receive in the future। अगर वो इतना सबमिट करता जाता है, डिपॉजिट करवाता है, तो 10 ईयर के बाद जो कि यहाँ पे पीरियड मेंशन है तो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो कैश फ्लो पर पीरियड है $1,000, इंटरेस्ट रेट है 6%, अब कंपाउंडेड मंथली है तो 0.06/12 यानी 0.005, और नंबर ऑफ़ पेमेंट जो है वो 10 साल के लिए, एक साल में 12 है तो टोटल 120 बन जाएंगी। फार्मूला हमने लगाया 1 - 1 + i⁻n/i, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इनको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 90,073.4533। ओके, अल्लाह हाफिज़।